करेक्ट। क्या मैं खुद को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि स्मितेश यू आर डूइंग गुड, तुझे मजा आ रहा है? नहीं। हम्म। तो क्या फायदा इतना रगड़ के कि तुझे मजा ही नहीं आ रहा है, तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा फिर कैसे आइडिया है, लाइक यू वर इनटू इंजीनियरिंग, डबल इंटीग्रेशन पट नहीं रहा था, मैम से कंप्लेंट किया, शांत बैठा रहा, चार दोस्त मिले एक ही ब्रांच के, एक क्लास के, एक इसके, बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, या फिर स्टार्टअप होता भी है या बिजनेस होता भी है, लाइक ड्यूरिंग एजुकेशन, ये है? कैसे पता चला मतलब? लोग ये जो सोचते हैं कि फाइनेंसेस इज वेरी क्रिटिकल एंड रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, बट हमने तो जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया है। अरे आपके पास कुछ है ही नहीं तो किस चीज का डर? Hello, 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 hello. Welcome everyone to Priva Inspires, a podcast channel. I'm your host Akhilesh Sontakke, founder of Priva Technologies, where we manufacture, sell, install, and maintain electric vehicle chargers for all kind of electric two-wheelers and four-wheelers out there in India. This is a new vertical where we invite founders to talk to their journey, founders from all varied range from 18 years to 70 years maybe, and they will share their journey. And it is up to you that if you listen to the journey, if you can correlate that if they can do it, I can also do it, and if you start something of their own, it's wonderful. So today is the first session, and let's start it. So, welcome Smitesh to our first ever podcast. We are recording it for the very first time at Priva Inspire. So, let me tell you what Priva Inspire does. So, you might be knowing what we are do. We are into manufacturing of EV Yeah, chargers, definitely. Right. but there is another vertical that is Priva Inspires. So, our journey also Mhm. started by in seeing at the founders how they are doing work, how they are into startup ecosystem and how they have Mhm. started, and I could personally correlate with them कि वो कैसा कर रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो यार मैं भी कर सकता हूँ, सब करें एंड बिल्कुल। सब कर सकते हैं. सो दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड, and through this channel there will be more and more founders like you who has started their journey in this entrepreneurship or in this whole EV or startup ecosystem. एंड whoever is watching right now, वो अगर देख सकता है, अगर स्मितिश कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सब एंड कर इफ सकते हैं दैट बिल्कुल। एम happens, we are great success. So this is our Right. first ever video we are recording right now. So welcome once again. Thanks for Thank you. being at the show and being It's my kind honor to basically. Yeah. be first ever guest. So I know more about you, what you do, but let me tell you all. Smitesh runs a company. It is known as Aerovania. It is into completely into drones. But मैं कहूँगा तो वो बहुत गलत होगा. So I will give whole stage to Smitesh. Smitesh, tell everyone, everyone of us, tell what you exactly do and what Aerovania does. So we are happy to know about you. Yeah, sure. Thank you, Akhilesh, for basically congratulations first of all for Yeah. this great initiative. All the best for your future. And ये मेरी खुशनसीबी है कि फर्स्ट गेस्ट मैं हूँ. So thank you so much for the invitation. Let me tell you guys about Aerovania. First of all, what is Aerovania? Na? It's just something run by the friends. Okay, दोस्तों ने मिलके कुछ जुगाड़ एंड ऑल ये सब. ठीक है. Okay. Aerovania, we basically are in the drone domain. We are a drone based company. What we does a survey for the government of India, and different organizations basically run by the government like Indian Railways, then National Highway Authority of the India, then जल संधारण विभाग जो होता है इंडिया का, जो पानी डैम्स वगैरह के सर्वे करते हैं. हमारे पास काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी के ड्रोन्स हैं जो भी कमर्शियल लेवल पे यूज़ होते हैं. फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन्स. देन एग्रीकल्चर्स के ड्रोन्स जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं. हम लोग बेसिकली टेंडरिंग के थ्रू ये सारे काम अचीव करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एंड हम लोग अभी करंटली काफ़ी अलग अलग लेवल्स पे R&D चला रहे हैं. हमारा खुद का कंपोजिट मटेरियल भी है. जूट फाइबर से हम लोग
कंपोजिट मटेरियल डेवलप करके उनसे ड्रोन फ्रेम्स एंड गाड़ियों के जो बोनट्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर R&D कर रहे हैं. एंड अगेन वी हैव एन R&D सेक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ one flight controllers for the drones. Basically all the flight controllers are imported from China and Korea. इंडिया में कोई नहीं बना रहा है, तो ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हम लोग करना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर रनिंग. सो दिस ऑल अबाउट एरोवेनिया. Yeah, because see, my first impression like I तो और मैं मेरे को लगता है मेरे जैसे बहुत लोग होंगे भी या फिर आई एम द ओनली फूल. आई व्हेन आई थिंक ऑफ ड्रोन मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने ड्रोन देखा होगा कि जो इधर आजकल न्यूज़ में आता है कि पाकिस्तान भेज रहा है इंडिया टू फॉर द सर्वेलेंस या फिर शादियों में उड़ते फोटो कैप्चर करते हुए देख रहा था. बट येस इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट बट देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड एंड यू नो application and that's what you are doing. And we will go more deep into that like you are doing a lot. So you said that you are doing it for the government. Was like at this age. Basically. Okay. Whenever we talk about drones ना, मैं जिससे जब भी ड्रोन्स के बारे में डिस्कस करता हूँ या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, I always compare drones with like just like a truck. Just imagine you have a truck. So if I am a truck owner and I learn about how to drive a truck and how to repair a truck, Correct. then it really doesn't matter what's the thing I put in the truck. Like मैं मिट्टी लेके जा सकता हूँ, मैं लोगों को लेके जा सकता हूँ, मैं सोना भी लेके जा सकता हूँ Correct. by using the same truck. Correct. Then drone is just the same thing. Drone is just a machine or robot which can fly. But the matter which is concerned na, it's a payload. Okay. So whether I put a pesticide on the drone, it's an agriculture drone. मैंने कैमरा लगाया तो it's a surveillance drone. And if I put some defense equipment and ammunitions on it, so it's a military kind of drone. Okay, so there's like yeah that we understood like how drone works or what exactly it works. But if we say okay, who are up your primary customer segment? What we can say that who are the ones, or which industry you specifically target? Like only for mapping government or something else you do also? या बेसिकली ना इन इंडिया जब भी मैं इंडियन सिनेरियो की बात करता हूँ अबाउट ड्रोन्स एंड ऑल, currently the major customer is only government. Okay. What government does na, government does regular working for the development and collecting the data for the running projects. इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो काफी बड़े लैंड स्केल पे फैले होते हैं. तो इन सबको एक ग्राफ में एक इमेज में देखना इज वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जस्ट इमेजिन लाइक आई कैन गिव एन एग्जांपल लाइक ट्रैक डबलिंग का काम चल रहा है, आपको अच्छे से पता होगा. जो रेलवेज के ट्रैक है, एक्सप्रेस ट्रैक्स बन रहे फॉर द गुड्स ट्रेन्स जो है. सो फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी जगह अवेलेबल है, कहाँ से ट्रैक जा सकता है, कहाँ से डबलिंग होती है. या फिर टेकन अनदर एग्जांपल ऑफ अभी नितिन गडकरी जी जो नागपुर से ही है बेसिकली, ये लोग नए हाईवेज बना रहे हैं. हम लोग रोज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने सेट कर करके कि 12 किलोमीटर का रोड हम लोग रोज बना रहे हैं. रोज बनाते हैं. हाँ. रोज बना रहे 12 किलोमीटर. तो इसके लिए इंजीनियर्स को जो बैकएंड डेटा लगता है फॉर द कैलकुलेशन, जैसे कि टैपर एंगल कितना होगा, टर्निंग रेशियो क्या होगा, लेवल में है कि नहीं रोड, 4 लेन रोड के लिए कितना मुझे जगह क्लियरेंस करना पड़ेगा, ये सारा एनालिसिस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एरियल डेटा लगता है. Okay. ठीक है. इसके बाद जो पानी है, फॉर एग्जाम्पल कोई डैम बन रहा है तो डैम का बैक वाटर होता है, आपको पता होगा. सो बैक वाटर कितने ज्यादा एरिया को अफेक्ट करेगा, तो कितने लोगों का रिलोकेशन करना पड़ेगा. देन फार्मिंग कितना अफेक्ट होगा, वहाँ का वाइल्ड लाइफ तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, ये सब जानने के लिए एरिया सर्वे नीडेड होता है. ये हो गया गवर्नमेंट का काम. देन जो प्राइवेट प्लेयर्स इंडस्ट्री में, जैसे कि बड़े लोग जो कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस में होते हैं, जो लोग माइनिंग साइट्स चलाते हैं, आजकल तो सारे माइंस प्राइवेट है. तो ये जो लोग हैं इनको कितना वॉल्यूम ऑफ कोल इज अवेलेबल इन द माइन टू फाइंड आउट दैट ना ड्रोन फ्लाई करना पड़ता है. हम उसको कहते हैं वॉल्यूम एनालिसिस. कितना कोयला है, देन कहाँ से कोयला निकालना चाहिए ताकि पूरी माइन सेफ रहे, देन जो माइन है वो कितने एरिया में फैली हुई है और कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिटेबली हम लोग माइन कर सकते हैं. फॉर ऑल दिस प्लानिंग्स ड्रोन्स आर वेरी crucial. I can say, yeah, very crucial. Then okay, this is private and public is there. Public sector like with government maps देते हैं,
in road, Mhm. in maybe in mining or in farming. Mhm. So we can see that lot of lives are also dependent or can be affected by its application. How Mhm. efficiently you map all these things and generate data, Yeah, जितना मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल. from a talk. And but there is also the talk going on around the market कि why not deliver food or deliver goods by using drones. Like how do you see that, like क्या ये भी एक application हो सकता है, क्योंकि अगर लेमैन जिसे ये इतना पब्लिक और प्राइवेट का पता नहीं होगा, बट मेरे दिमाग Mhm. में फिर पहला एप्लीकेशन ये भी आता है कि यार इतना ट्रैफिक में एक स्विगी या फिर जोमेटो गाय को इतना टाइम लगता है जो भी फूड डिलीवरी करता है, बट बाय यूजिंग ड्रोन अगर ये करा जाए तो कैसे, मतलब हाउ डू यू सी दिस? ओके, बेसिकली ना मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि व्हाट इज द चैलेंजेस हम्म। बिहाइंड द एप्लीकेशन यू मेंशन्ड. हम्म। बेसिकली द ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग करंटली ना आर बेस्ड ऑन जीपीएस टेक्नोलॉजी, ठीक है. करेक्ट. So what GPS does ना, it tells and two-dimensional positioning of any object. ठीक है, ओके. थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. आप जो भी मैप फोन में खोल रहे हो, वो आपको बस इतना बता रहा है कि आप आगे हो, पीछे हो, राइट में हो या लेफ्ट में हो. आपकी करेक्ट. हाइट कितनी है ये मैप नहीं बता रहा है. ओह. देन ओके. अगेन एक एक्सपेरिमेंट आप कभी करना कि हम्म. whenever you on the map ना, go for the walking, choose the walking option ओके. and zoom it जितना ज्यादा हो सकता है. हाँ. तो आपको कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाएगा. एक सर्कल आएगा छोटा एंड इसके आसपास और एक ब्लर वाला थोड़ा लाइट वाला हाँ. सर्कल. What GPS does ना, it basically predicting your position in the Correct. 5 square by 5 meter by 5 meter square. From nearby towers, right? They takes Yeah, the signal. not towers basically. It's a satellite based system. Okay. It's a electronic detection system by the satellite which is developed by USA basically. हम्म. So जितने ज्यादा सैटेलाइट तुम्हें एक टाइम पे डिटेक्ट कर पाएंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा. बट द एवरेज सैटेलाइट काउंट विल बी अराउंड 7 to 10. ओके. जब भी आप कोई मैप खोल रहे हो और उसमें आपका पोजीशन दिखा रहा है, हम्म. तो वो आपको साइमल्टेनियसली 7 से 8 सैटेलाइट आपको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है. अभी इसको ड्रोन से रिलेट करते हैं. ओके. अभी हमारे पास अगर गाड़ी है और आगे 5 मीटर में कोई गड्ढा है या कोई दीवार है, तो हम लोग वी कैन अप्लाई ब्रेक्स, Correct. वी कैन स्टॉप देयर, ठीक है, एंड ऑब्जर्व मैन्युअली. बट एरियल व्हीकल जो है ना, इट्स वेरी क्रिटिकल क्योंकि हवा में कोई ब्रेक्स काम नहीं करते. हवा में आप किसी भी चीज को क्विक रिस्पॉन्स आपको चाहिए Correct. होता है. Correct. अगर आपको फूड डिलीवर करना है तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉप इट एट अ वेरी करेक्ट लोकेशन. एंड अगेन इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि अभी आजकल मार्केट में या इंडस्ट्री में एक प्रिसीजन लैंडिंग करके एक टेक्नोलॉजी है. इसमें आपके पास एक क्यूआर होता है, ड्रोन में वो क्यूआर रजिस्टर होता है एंड वो ड्रोन बराबर वो क्यूआर के ऊपर लैंड करे. ओके. बट कितने घरों के आसपास आप क्यूआर लगा सकते हो, पहला चैलेंज. आप कितने लोकेशंस काइंड पे ऑफ प्रिसीजन लैंड कर सकते हो. helipads for Helipads, drones. kind of, yeah. Yeah. Okay. Then next challenge is concerned about dropping. Like it's a Indian crowd यार, it's a Indian people. आप कोई नई चीज देखते हो तो उसको उठा के घर लाने का मन करता है. अगर आपके सामने ड्रोन है तो आप इसको Correct. छेड़ोगी नहीं, इसका क्या Correct. गारंटी. इट्स अ lakhs and lakhs rupees of drone which is delivering your 200 rupees of pizza. अगर वो कस्टमर ने ड्रोन को डैमेज किया तो व्हाट्स द सिक्योरिटी फॉर द कंपनीज, ठीक है. Then again one more counter challenge which Zomato provides, I think, for or Zipline. Zipline is the company which is also in the domain of R&D of that particular food delivery. Okay. What they does now, they drops your baggage by using some little bit of string kind of thing. So Okay. what happens if someone pulls that string? So these are the real life scenarios. Now this is not only about India. This is the mentality of anyone from the any corner of the world. कि वो चीज मुझे देखना है, पास से देखना है, उसके साथ थोड़ा छेड़खानी करना है. So this is are the challenge concern about these applications. This is very difficult nowadays. So इसके लिए ये अभी implement नहीं हो पा रहा है. But do you see in future it will happen, like Yeah, मैं yeah, order करूँ, definitely. मुझे घर पे पिज्जा within a minute, within 2-3 minutes deliver हो जाए through drone. आजकल मतलब हम लोगों को सिर्फ हाइट से फोटो खींचना ही चीज इम्पॉसिबल लग रही थी. वी जस्ट हायर अ प्लेन, वी वाज जस्ट हायरिंग अ प्लेन एंड प्लेन से फोटो खींच रहे थे. आजकल कोई भी बस 2000 रुपए के ड्रोन से सिंपली फोटो खींच सकता है. दिस हैपेंस. ये चीज भी फ्यूचर में 101% पॉसिबल है. I'm really excited for that.
कि मुझे Me too. मुझे भी ड्रोन पास से देखने को मिले और मुझे मेरा खाना मुझे ड्रोन से डिलीवर हो, बट बिल्कुल, एंड एज अ कंपनी ओनर मेरा ड्रोन सेफ रहे. that is more Yeah, important that basically. is more important. Yeah. So okay, so lot of things that you are doing actually, and तो इस सबको एक कहीं ना कहीं बेस तैयार हुआ होगा. And how long then you are in business right now, like from how long you are running the company? Okay, basically we are running company for more than 2 years, but we are registered for 1.5 years. Okay, close to 2 year we can say. Yeah, nearly. Nearly. Okay, nice. So revenue वगैरह तो नहीं पूछूंगा. That if you are It's okay, a top you secret. can share, or I can share a screenshot in the comment section. But yeah, but really nice, like 2 years. And थोड़ा सा फिर एजुकेशन कब कंप्लीट हुआ? Like you were working somewhere or what? Okay, इसके लिए सच बताना पड़ेगा ना? बिल्कुल. ओके, जस्ट किडिंग. तो मेरा ग्रेजुएशन बेसिकली इसी साल हुआ है, 2023 में पास आउट. या Okay, interesting. Like during your studies, then during your graduation, you started this. या ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन वी स्टार्टेड दिस. आई थिंक लॉकडाउन चल रहा था तब. Oh, so lockdown का full मैं use सब किया है या in a positive डेफिनेटली. direction, कह सकते हैं. ओके राइट, क्या हुआ ना बेसिकली, हम लोगों को स्टार्टिंग में हमारा मेरा कॉलेज के बारे में बताता हूँ सबसे पहले. बेसिकली माय एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन आर फ्रॉम बेसिकली प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. इट्स अ नागपुर बेस्ड, यू कैन से, private college. It's a Yeah, Nagpur based. apparently I Yeah. used to be in that college also. Pass out from that college only. Same college. Yeah. So I think you know better than me about Priyadashini. So Yes. my branch is basically aeronautical engineering. Mm-hmm. Aeronautical engineering not by choice. Okay. By I think that. Maharashtra seat allocation, anything like that? Actually, I'm focused on NEET. I Okay. want to be a doctor. तो 2 साल में Completely 11th 12th. opposite. Yeah, that's the magic. That's the magic of industry, basically. That's the magic of engineering. Correct. ओके, मैं 2 साल पहले औरंगाबाद में था. मेरे सारे दोस्तों के साथ, हम सारे क्लासमेट्स एक जगह पे 2 साल फुल ऑन मस्ती. उसके बाद जब भी रिजल्ट वगैरह आए, हमारे मार्क्स थोड़े अलग अलग रीजन की वजह से कम थे. बट फॉर्चुनेटली हमने एग्जाम्स दे के रखा था. मैंने एग्जाम दे के रखा था कि सीईटी, एमएसटी सीईटी एक बैकएंड में ऑप्शन रहेगा. Option रहेगा. एंड मेरा स्कोर उसमें काफी अच्छा था. सो रैंडमली जो भी, आई जस्ट सर्च द इंटरनेट कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग फील्ड्स. इसमें लिस्ट आया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, Okay. डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, Mm-hmm. मैं पहला, आपको पता है राउंड होते हैं इंडिया में या महाराष्ट्र, Yes. Yes. allocation round. Correct. In the first round na, I secured the branch called AI. Okay. Then I googled what is AI and all, and I just During that time, yeah. हालत खराब हो गई क्योंकि मैथमेटिक्स. आपको पता है, अगर लिसनर आपके व्यूअर्स बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे तो वो समझ सकते हैं मैथ्स का डर, इंटीग्रेशन का डर. So I just skipped the branch. And second round में अलॉट हुआ मेरा, नॉट अलॉट एक्चुअली, इट ऑटो फ्रीज्ड. Okay. पहला पर आपका प्रायोरिटी है तो इट विल बी ऑटो फ्रीज्ड. Okay. तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑटो फ्रीज हो गया. पहले जब स्टार्टिंग के दिन थे, हम लोग कॉलेज में आए, मैं बेसिकली पहले दिन कॉलेज में आया, सारे लोग, अच्छा सीईटी में मार्क्स अच्छे थे तो इस वजह से मुझे टॉपर्स वाले सेक्शन में डाला गया, सो कॉल्ड ए सेक्शन में. सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, यार ये कितना आसान है, सिंपल है मैथ्स है. हमारे क्लास टीचर मैथ्स पढ़ाते थे, वो क्लासरूम में आया एंड शी वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड. वो जैसे ही हटे, मैं उनको पढ़ रहा हूँ, वहां लिखा था डबल इंटीग्रेशन. सारे लोग बोल रहे, यार ये तो पहले ही पढ़ा है. मैं बोला, यार गाइस मुझे इंटीग्रेशन भी नहीं आता है, मैं डबल इंटीग्रेशन कैसे करूँ. कुछ दिन बीते, मैं मैम से डिस्कस वगैरह किया. मैम बोलती, बेटा पास हो जाओगे ना. बोला हाँ मैम, कोशिश तो जारी है. रिजल्ट लगा एंड बिलीव मी गाइस, बस 1 मार्क से मैं पास हो गया. 40 का पासिंग होता है एंड आई हैव 41. So तो ऐसा basically सब स्टार्टअप शुरू start करने हुआ. के लिए मार्क्स इम्पोर्टेंट या फिर डबल इंटीग्रेशन आना इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था, ना मार्क्स इंपॉर्टेंट है ना डबल इंटीग्रेशन. करेक्ट.
So So okay, उसके बाद तो but from फिर that, like from where exactly you are born and brought up, bringing मैं up नहीं कैसी थी? समझ। ओके, मेरी ब्रिंगिंग अप तो काफ़ी सही थी। मतलब मेरे पेरेंट्स दोनों एजुकेशन फील्ड में हैं। मेरे पापा ओके टीचर हैं, ओके तो मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था, बेटा जो करना है वो करो। अच्छा, मैं इतना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ऑल कभी नहीं, एकदम ही बेसिक। मतलब एज पे जो लोग पास होते हैं ना, जस्ट लाइक एन एज। मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था, फुटबॉल हम ओके लोग ने काफ़ी खेला है। एंड और एक क्वालिटी में मेंशन करना चाहूँगा, पब्लिक स्पीकिंग। हाँ मतलब मैं काफी पहले से पब्लिक स्पीकिंग पे हूँ, तो स्टेज फियर एंड ऑल, प्रेजेंटेशन देना एंड पट से लोगों से कैप्चर कर लेना, ये सब मैं लोग पहले से ही करते हैं। वो तो लेकिन दिख भी रहे हैं यहाँ पे, सो या जो बोलते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हारे मतलब बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, वो सब मुझे, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि कब क्या कौन सी चीज क्लिक हो जाए, डजेंट नो, यू डजेंट नो। ऐसा सब अपब्रिंगिंग था कि बस करो, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई कहाँ फोर्स से नहीं। कौन से सिटी से हो आप फिर? मैं बेसिकली एक तालुका लेवल गांव से बिलोंग करता हूँ। जळगांव डिस्ट्रिक्ट में एक पारोला करके तालुका है, तो वहां पे मेरा एक सेमी इंग्लिश स्कूल था, अरे बेसिक एकदम। हाँ, ओके जहाँ पे मराठी सब्जेक्ट होता है, संस्कृत हिंदी ऐसे सब्जेक्ट वाला स्कूल था। हाँ हाँ लेकिन वहां से मुझे, मतलब मैं काफी लकी मानता हूँ खुद को कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में था जहाँ पे ग्रो करने को बहुत कुछ था। हम्म, लाइक स्काई इज द लिमिट, कि कोई स्काई कंपटीशन नहीं है अभी, बिल्कुल जो कुछ है वो सब कुछ पाना है बस। नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं ना हमारे पास, खुद खोने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ सब खोने कुछ के जो लिए भी है नहीं वो है या पाना ही है। बिल्कुल ओके बिल्कुल। एंड आई थिंक आपको अगर कहीं पे पहुंचना है ना, मतलब कहीं ऊपर जाना है ना, तो यू मस्ट गो थ्रू द बॉटम। या दैट्स ट्रू, आपको बेस पता होना ही चाहिए, आपको बॉटम पता होना चाहिए। दैट्स ट्रू। ओके सो फिर जलगांव, फिर देन स्कूलिंग जलगांव, देन जलगांव, फिर इन औरंगाबाद। औरंगाबाद ओके। 10th तक मेरा जलगांव ही था। 11th 12th में औरंगाबाद में किया। इसके बाद हम ओके लोग मतलब नीट खत्म एंड रिपीट नहीं करना था। हम्म पेरेंट्स वो सेइंग कि करो चलो रिपीट रिपीट कर लेते हैं एक साल में, तो हो ही जाएगा, आराम से हो ही जाता है नीट वालों को। बट आई वाज लाइक कि रुकना नहीं है, उतना कुछ भी करेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। तो ओके चलो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। देन आई वाज जस्ट लाइक ओह माय गॉड, लाइक शॉक्ड। खत्म, मैं किसी से बात नहीं करना ज्यादा, अकेले रहना। एंड ज्यादा दोस्त नहीं थे मेरे, एकदम गिने चुने ही थे। ओके ठीक है, तो उनके साथ रहना, ठीक है। आसपास लोगों को ऑब्जर्व करता था मैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और मेरे जो को फाउंडर्स है, मेरे जो डायरेक्टर्स है, उनके बारे में बताऊंगा आगे। दे वाज लाइक बूमिंग इन कॉलेज यार। एक बंदा कॉलेज में फर्स्ट ईयर प्रेसिडेंट है, एक बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, एक बंदा एरो मॉडलर है ना। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, So मैं इन you लोगों are को ढूंढता था। four of us. हाँ, वी आर 4। Okay, and say from इसकी same भी एक branch इंटरेस्टिंग or स्टोरी है। okay. इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं बताऊंगा आपको। वी हाँ. ऑल फ्रॉम सेम ब्रांच, एरोनॉटिकल Oh, इंजीनियरिंग, सेम ब्रांच, सेम क्लासरूम, सेम कॉलेज। oh, nice, amazing. Like startup happening, big things happening in a room जो कहते हैं, या फिर big things happening during the डेफिनेटली education. स्टीव जॉब्स या। Yeah. Okay. तो ऐसा सब रहा। फिर कैसे आइडिया आया, लाइक यू वर इनटू इंजीनियरिंग, डबल इंटीग्रेशन पढ़ नहीं रहा था, मैम से कंप्लेंट किया, शांत बैठा रहा, चार दोस्त मिले एक ही ब्रांच के, एक क्लास के, एक इसके, बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, या फिर स्टार्टअप होता भी है या बिजनेस होता भी है, लाइक ड्यूरिंग एजुकेशन, ये कैसे पता चला मतलब? जहां तक मुझे पता है कि मतलब ये मेरा मानना है कि लोग आजकल क्या समझते हैं कि फॉर स्टार्टिंग समथिंग ना, यू शुड हैव सम आइडिया। ठीक है, ऐसा मतलब जनरल यूथ का आइडिएशन है कि इफ यू वांट टू स्टार्ट अप, इफ यू वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस ना, यू शुड हैव सम आइडिया, यू शुड हैव फंडिंग, यू शुड हैव कनेक्शन, आपके पापा की फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, लेट मी टेल माय सिनेरियो। जब तक लॉकडाउन नहीं लगा, फर्स्ट ईयर नहीं था, बाकी 3 लोगों से मेरा कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था। नहीं, ओके, बिल्कुल नहीं था, मतलब बस एज अ क्लासमेट्स, दैट्स इट। क्लासमेट से, हाँ या जस्ट लाइक क्लासमेट। जैसे ही लॉकडाउन लगा, मैं घर गया एंड शांत बैठना मतलब इम्पॉसिबल, वो तो कभी नहीं बैठ नहीं सकते। ओके, तो मैंने काम करना चालू किया। आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स, लाइक अभी पानी में कूद तो गए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ले तो लिए, तो कुछ ना कुछ अच्छा
करके ही जाएंगे। Right. तो मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर, अच्छा उस टाइम पे मेरे काफी अच्छे दोस्त थे कुछ, सृष्टि, उदय, विनय, शुभ्रा, ये काइंड ऑफ मतलब ब्रिलियंट दोस्त थे। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि Okay. स्मितेश पढ़ना चाहिए, पढ़ना शुरू कर। उस टाइम पे लॉकडाउन में जो लोग आराम कर रहे थे यार, रो रहे थे कि लॉकडाउन है, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया, ये हो गया, उस टाइम पे मैं 16-16 घंटे बैठ के डिजाइनिंग पढ़ रहा था, Okay. आइसोलेटेड, किसी को कुछ नहीं पता है, मैं बस अकेले बैठा हूँ, मेरी एक टीम है, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी था काफी पहले, कॉर्ड थ्रस्टर्स करके, हम दोस्तों Okay. का। और हमने उस टाइम पे एक डिक्शनरी बनाई थी, 1000 वर्ड्स हमने ढूंढ के निकाले थे जो रिलेटेड टू एरोनॉटिकल, एंड उसको एक ड्राइव पे डाल के सिंपल बेसिक ऐप बनाया था। Correct. तब इसमें इंटरेस्ट जागा। एंड ये सब मैं जब कारनामे कर रहा था, अलग अलग एयरक्राफ्ट बनाना, डिजाइन बनाना, ड्राइंग बनाना, कैड सॉफ्टवेयर यूज करना, ये 3 लोगों ने वो देखा Okay. कि ऐसा ऐसा बंदा है, अपना क्लासमेट है, लेकिन इसके पास नॉलेज है, काइंड ऑफ ये काम कर रहा है, थोड़ा कीड़ा है बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में। Yeah. हाँ, और ये तीनों का माइंडसेट, ये लोग तब आई थिंक बैंगलोर में थे, दे वाज इन क्रैनोफिस प्राइवेट लिमिटेड फॉर इंटर्नशिप, देयर इंटर्नशिप फॉर आई थिंक एयरक्राफ्ट पार्ट्स जो बनते हैं उसका कैसा होता है, उसके इंटर्नशिप पे थे। एंड दे वाज लाइक कि कुछ ना कुछ करना है यार, वो बेसिकली उनका आइडिया था उन तीनों का कि कुछ करते हैं, शांत नहीं बैठते। Correct. दे कॉल्ड मी, गौरव कॉल्ड मी बेसिकली। Okay. और कॉल पे सिंपल बात हुआ कि कैसा करना है स्मितेश, ऐसा ऐसा है। जैसे ही उसने बात किया मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ काम है, क्योंकि 2 साल में पहली बार कॉल आना एंड पहले कॉल पे ऐसे डिस्कशन करना, तो मैंने भी थोड़ा ओपन अप होके बताया क्या सीन है। देन हम लोग काफी ज्यादा डिस्कशंस एंड डिबेट्स, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब माइंडसेट्स मैच कर गए। उस टाइम पे हमें पता लगा कि वी आर लाइक माइंडेड पीपल्स। और तब लॉकडाउन चल रहा था और मैं नागपुर आया Okay. घर वालों से बहुत स्ट्रगल करके, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर निकलना या निकलने देना। Exactly. तो हाँ, जैसे ही बाहर आया, यहाँ पे नागपुर में हमारा फ्लैट है, वी जस्ट मेक अ फ्लैट अवर वर्कशॉप। हमने एक रूम अलग से निकाला एंड वहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए सारे। हमारा पहला प्रोडक्ट था आई थिंक ये कंपोजिट पे हम लोग काम कर रहे थे। Okay. तो आइडिया ऐसा था कि जो कार्बन फाइबर है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। मेरा बायोलॉजी था, प्यार ऐसे अंदर से आते रहता है, निकल रहा था सब। निकल रहा था। तो आई वाज लाइक कि चलो यार, नेचर को बहुत हार्म कर रहा है कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, हम उसको रिप्लेस करते हैं बाय यूज नेचुरल फाइबर रीइंफोर्समेंट। Okay. तो मैं स्टडी चालू किया, क्या नेचुरल फाइबर कौन से क्या होते हैं। तो हमको एक ऑप्शन मिला उस टाइम पे, अलगी। तो अलगी, ये मैं इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने क्या कांड किए हैं, ठीक है। अलगी जो है वो बेसिकली प्रोसेस करके उसका फाइबर्स निकालना पड़ता है, सेलुलोज निकालना पड़ता है। हम लोग लिटरली पूरे नागपुर में लॉकडाउन में घूम के जो तालाब है उसमें से बैडमिंटन रैकेट से अलगी जमा कर, Oh my God. Okay. और वो अलगी घर में जा जा उसका इतना ज्यादा स्मेल आता है कि इट्स फॉर अलगी यार, इट्स अलगी। Yes. इसका स्मेल आता है, हम लोग फ्लैट में वो अलगी बाथरूम में धो रहे हैं, ठीक है। एंड वो उठा के वापस कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में उसको घंटों घंटों तक बॉईल कर। सो ऐसा अप्स एंड डाउन वाला पूरा हमारा स्टार्टिंग वाला सीन था। Starting. Okay. तो मैंने वो मतलब स्टार्टिंग में जिन लोगों ने हम लोग को देखा है कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगे कि हम प्रॉपर ड्रोन डोमेन में है। Exactly. Who would imagine ना कि ड्रोन से पहले हाँ, ये ड्रोन सब से चीजें- related हाँ. ये सब। और एक किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब हम लोग ने जब ड्रोन बनाना स्टार्ट किया, पहला ड्रोन हमारा, तो ड्रोन कैलिब्रेशन एंड ऑल ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो ये कैलिब्रेट होता नहीं है। तो फ्लैट पे ये सब हो रहा है, वर्कशॉप फ्लैट सब पे। फ्लैट पे हो रहा है, या हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, सब फ्लैट पे हो रहा है। Yeah. हमने थोड़े इक्विपमेंट जमा करके पहला ड्रोन बनाया Okay. एंड उसको कैलिब्रेट नहीं हो रहा था। रात के 3-3:30 बजे का टाइमिंग है और दिमाग खराब हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन, इंजीनियर्स चाय पी लिए, 5-6 कप हो गए, नींद आ नहीं रही है एंड ड्रोन कैलिब्रेट नहीं हो रहा है। Okay. तो हमारा सोसाइटी है एंड सोसाइटी के दीवार के पीछे सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ का जो नागपुर कैंप है वो दीवार के जस्ट पीछे ही है। और हम लोग रात को 3 बजे सोसाइटी के बीच में जाके वो ड्रोन रेडी कर रहे हैं। एंड उससे 3 दिन पहले ही अनफॉर्चुनेटली एयरफोर्स बेस पे ड्रोन से बॉम्ब ड्रॉप किया था, Oh. बंदूक। Okay. और हमारा जो एक पार्टनर है नितेश करके, ही इज फ्रॉम जम्मू। Okay.
और हमारे जो रूममेट्स थे, ही इज फ्रॉम तौफिक नाम का हमारा एक दोस्त है, हाँ ही इज फ्रॉम कश्मीर। तो हमारे पास ड्रोन है, हम लोग सीआरपीएफ के पास है, और हमारे कश्मीर से है। और हम वेरी रात के हाईली 3 बज रहे हैं। टारगेटेड एरिया, आई मस्ट से। हाँ, हाईली सेंसिटिव एरिया में हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं रात के 3 बजे। जैसे ही हम लोगों को ये सब रियलाइज हुआ, हम लिटरली ड्रोन छोड़ के भागे। हम आई नो। लिटरली भागे। तो ये सब से हमने बेसिकली स्टार्ट किया फिर है ड्रोन ड्रोन। कब उड़ा वो? ड्रोन वो उड़ा। अच्छा, उड़ने का भी मतलब वी डोंट हैव कैमराज एंड ऑल दैट। उस या टाइम पे हमारे पास कैमराज नहीं थे, हम लोग फोन लगाते थे ड्रोन ओके। के नीचे। हम लोग फोन, मतलब जो लोग आज वो सारा चीज देखेंगे ना, मतलब हम भी कुछ फोटोज देखते तो यार ये क्या है, क्यों करते थे ऐसा। हाँ हम लिटरली रबर बैंड से फोन लगाते थे एंड सोसाइटी में ड्रोन फ्लाई करते थे। तो जैसे ही पहली बार हमने ड्रोन फ्लाई किया फोन के साथ साथ, ये ड्रोन 200 फीट के हाइट से गिर गया फोन के साथ। गिर गया। ओ हाँ। ओके। ओके, हमारी सारी टीम है ग्राउंड में, और ड्रोन गिर रहा है। बंदे क्या करना चाहिए, मतलब आईफोन लगा है फोन के नीचे, और बंदे चिल्लाते हुए भाग रहे हैं कि ड्रोन गिर रहा है, ये नहीं फोन गिर रहा है। बंदे भाग रहे ड्रोन गिर रहा है यार। सो ये सारे मजेदार किस्से एंड ये सबसे हमने बट हाउ स्टार्ट वाज किया। द फीलिंग जो 200 फीट से गिरा, वो बात हम छोड़ देते हैं, बट द फर्स्ट ड्रोन इट टुक ऑफ इन द एयर, लाइक हाउ वाज दैट फीलिंग? जस्ट फील लाइक आपका बेबी पहला स्टेप ले रहा है। अरे बेसिकली अब इतना रात दिन का मेहनत, एक्चुअली जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, ड्रोन फ्लाइंग और ड्रोन कैलिब्रेटिंग इज नॉट अ बिग थिंग फॉर देम। लेकिन हम तो वहां पे एकदम ही नए थे, लाइक पहली बार कुछ करना एकदम ही चाहते newbies थे, हम लोग पहली बार थे। कर रहे यहाँ थे, तो पे इट वाज परसों ग्रेट। तक अलगी निकाल रहे थे, आज कुछ ड्रोन बना लिया है जो आज उड़ना ड्रोन चाहते बना रहे हैं। हैं। ओके। मतलब मुझे याद है, हमने बकायदा उस दिन बिरयानी की पार्टी की थी कि पहला ड्रोन फ्लाई हो गया। Must have celebrated. I can understand. And So, okay. So first ड्रोन उड़ गया, गिर गया, ठीक है, वो हाँ, ऑब्वियसली बाद में रुके नहीं है सिंस यू आर हियर, बट देन हाउ डिड इट स्टार्ट, लाइक आफ्टर दैट falling of the drone, what was the motivation next? बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये सीख किया कि यार ये फील्ड तो बहुत मजेदार है, लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है। Okay. तो हमने ये सोचा कि हम पता करवाते हैं लोगों को, हम बताते हैं कि ये क्या सीन है, इसमें कितना मजा आता है। तो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, वी स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग्स। मैं खुद ही ट्रेनिंग देता था Of drones, how to build them and all. या बेसिकली ड्रोन्स या। Okay. तो वो हमारे वर्कशॉप का नाम है कैटलिस्ट। Okay. कैटलिस्ट जैसा नाम, जस्ट टू कैटलिस्ट योर फ्यूचर, जस्ट टू कैटलिस्ट योर करियर। Correct. तो कैटलिस्ट द ड्रोन वर्कशॉप नाम से हमने ट्रेनिंग शुरू किया। तो ये फ्लैट में कैटलिस्ट वर्कशॉप हो रहा था या कहीं और पे? हम लोग जब कैटलिस्ट वर्कशॉप लिए थे, हम लोग फ्लैट में ही थे, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं था, लेकिन हमें जगह चाहिए थी। तो वी अप्रोच द कॉलेज। ओके। कॉलेज में हमने एक जगह का थोड़ा अरेंजमेंट किया, एक जगह पे, एक लोकेशन पे, एंड वहाँ पहला वर्कशॉप लिया एंड वहां से रेवेन्यू जनरेट किया, एंड वो रेवेन्यू से वापस आगे का काम शुरू किया। तो हमने ट्रेनिंग डोमेन से शुरू करके। अच्छा, सबसे खास बात जो मैं काफी मेंशन करना चाहूंगा, लोग ये जो सोचते हैं कि फाइनेंसेस इज वेरी क्रिटिकल एंड रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, बट हमने तो जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया है। या लाइक आई ऑल्सो बिलीव That's the thing. कि बिजनेस मतलब एक होना चाहिए कि देख, देयर आर टू वेज, एक यू गो इन द मार्केट, get money from the investors at a very early stage before even starting it, and keep on putting that money for your thing and keep building it. The other way or the other perspective is like कि तुम अगर तुम्हें उधर तक पहुंचना है, बट तुम शुरुआत में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे छोटा पैसा जमा हो, जो छोटा पैसा जनरेट हो, तुम उसे यूज करो एंड स्टेप बाय स्टेप तुम तुम्हारे चीज की तरफ बढ़ो जो फाइनली कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। So something like that, something similar. मैं थोड़ा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये चलो फाइनेंसेस का अखिलेश आपका एकदम सही पर्सपेक्टिव है, और मैं बिलीव करता हूँ कि सेकंड जो पर्सपेक्टिव है आपका वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें आप ग्रो कर रहे हो, करेक्ट, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, नरिश कर रहे हो खुद को। करेक्ट। एंड इसमें और एक पर्सपेक्टिव रहता है, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं काफी लोगों से बात कर रहा था जनरली, स्टूडेंट्स एंड ऑल, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है और जो बस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बोलते भैया आइडिया नहीं है, कुछ करना आइडिया नहीं है। तो आइडिया नहीं तो भैया घर वाले पैसे नहीं दे रहे एंड ऑल। लेकिन आई पर्सनली बिलीव दैट कि आपको कुछ करना है तो आइडिया की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। हमारे पास भी कुछ आइडिया नहीं था, बस एक हिम्मत थी, एक जुनून था कि कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल करना है।
नॉन ट्रेडिशनल Yeah. करना है, एक इसे फ्लैप में नहीं चलना है, रैट रेस में नहीं भागना है, शुरू करो, कुछ ना कुछ रास्ता 101% मिल जाता है. Correct. So how This is very was important. the okay? So you first took some training, generated money, pour in the Hmm. company, and then Hmm. went to big things, and then I guess you started, designing drones and service. Yeah. But at the same time, most like you started by being a student in the college. Hmm. Okay. So how does it like कुछ पढ़ाई affect कर रही थी, एजुकेशन impact हो रहा था इससे, या फिर how were you dealing both the things? ओके, सबसे बेसिक बात, वी आर इंजीनियर्स, हम्म. तो हम लोग पूरा साल पढ़ने की हमें जरूरत पड़ती नहीं है. ठीक है. Okay. ओके, बीइंग सीरियस ऑन दिस टॉपिक ना, या इट अफेक्ट्स, क्योंकि अगर आप फोकस शिफ्ट करोगे तो बेसिकली कहीं ना कहीं एरिया में डार्क स्पॉट आना ही आना है. Yeah. बट व्हाट आई पर्सनली ऑब्जर्व कि अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दे रहे हो तो थियरी इज कम्प्लीटली बेसिक बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल. Practical. अगर मुझे सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चर्स, तो पढ़ने से अच्छा मैं वो स्ट्रक्चर्स पे काम अगर कर रहा हूँ तो मुझे वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. Correct. मैं इतना बैक मैंने अभी तक कोट किया कि मैं कभी भी टॉपर्स एंड ऑल ये लिस्ट में नहीं आता था, एज पे पासिंग एंड ऑल. बट वी ऑल एक्चुअली, मेरे जो 3 और पार्टनर्स हैं वो टॉपर्स है, सारे तीन टॉपर्स है. ठीक है. Okay. बट मैं इतना ज्यादा ये काम में इन्वॉल्व हो गया था कि 6th सेम मैंने भी यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया, फर्स्ट रैंक इन 6th सेम. कहने का ये है कि जब भी मतलब यू कैन से पढ़ाई अफेक्ट होती है, ये तब जब आप उस पर ध्यान नहीं देते हो. Neither. एक्चुअली होने वाली ये चीज है नहीं. But जब both आप things can be हाँ. managed. It is not like Things can be कि managed. things Things can be managed. Okay. Like how then? But इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कॉलेज का भी सपोर्ट था from at during that education level, because got some freedom doing things together. They would be knowing this, or they didn't know at all. Okay. Actually, we seek for the help or support from the college or institutions. We applied for various kind of supports like hall or the equipments and lab, Okay. but the things didn't work. बेसिकली एक किस्सा बताता हूँ. जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए थे, 1-1.5 साल इस चीज को हो गया था, सो वी स्टार्टेड गिविंग फुल टाइम टू द एरोविनिया. Okay. और कॉलेज में हम लोग अटेंडेंस हमारा फुल था इन कॉलेज कैंपस, बट नॉट इन क्लासरूम. Not in classroom. Obviously. नॉट इन क्लासरूम. तो एचओडी जो है हमारे, अच्छा पता नहीं ये मेंशन करना चाहिए या नहीं, बट स्टिल जो हमारे एचओडी हैं और जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, दे जस्ट कॉल मी स्मितिश एंड ऑल टीम फेल कर दिया जाएगा, Oh. So क्लास अटेंड करो, क्योंकि आपके वजह से मतलब वो उनकी जगह पे बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही, कि बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस ये हो रहा था कि क्लास में बिना आए भी मार्क्स मिल रहे, क्लास में बिना आए भी अटेंडेंस Correct. लग रही है. बैकएंड में हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को पता नहीं था. yes. मतलब हम लोग उस टाइम So पे kind literally of favor देना जैसा होता था. But Yes, such yes. resistance comes ना from रेजिस्टेंस Okay. कम्स, या डेफिनेटली. आप मतलब आप पेरेंट्स को बोलोगे कि मम्मी पापा मुझे जॉब नहीं करना है. मतलब मैं तो इस मामले में बहुत ज्यादा लकी हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. पर जनरली ऐसा होता है कि मुझे जॉब नहीं करना है, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, तो फैमिली वाले लाइक पागल है क्या, क्यों, उससे पेट कैसे भरेगा, तेरी शादी कैसे होगी. Yeah. या दिस इज रियल सिनेरियो. रेजिस्टेंस आता है, बट व्हाट मैटर्स ना कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा करते हो. Correct. मैं कुछ तो कर लूंगा, खाली कुछ पेट ना नहीं कुछ तो कर ही लेंगे. मतलब पगी तो अलगी से निकल के एक ड्रोन बना के उड़ के Drones 200 बना फीट से गिरा है, बट अभी दूसरे बार वो बराबर लैंड हो जाएगा और उससे भी बिल्कुल. एडवांस कर ही लेंगे. यहाँ तक तो कर पहुंचे. लेंगे. अमेजिंग. सो कॉलेज से ये रेजिस्टेंस था. देन हाउ डिड यू College टैकल से- दैट, हाउ डिड यू टैकल दिस रेजिस्टेंस और ओवरकम? उस टाइम पे जो सीन था हमारा, हमने बस एक ही चीज पे फोकस किया कि गाइस व्हाट वी आर डूइंग इज डूइंग फॉर अस. जो भी ये चीज फायदा करेगी ये हमें करेगी, कॉलेज का कुछ फायदा या नुकसान होने से नहीं रहा है. Correct. अगर हम लोग यहाँ से फोकस हटा के सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देंगे या डिग्री पे ध्यान देंगे, तो डिग्री लेने वाले इंडिया में लाखों लोग हैं. करेक्ट. कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने इंजीनियर्स एम्प्लॉयड है, उतने लाखों लोगों में से पर ईयर, पर एनम. करेक्ट. और जो एम है, मान के चलिए कि मैंने थोड़ा स्ट्रगल करके जॉब अचीव कर लिया,
और मैं अभी सेटल लाइफ स्टेबल लाइफ जी रहा हूँ, एक अच्छा पैकेज है मेरा, करेक्ट। क्या मैं खुद को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि स्मितेश यू डूइंग गुड, तुझे मजा आ रहा है? नहीं। हम्म। तो क्या फायदा इतना रगड़ के कि तुझे मजा ही नहीं आ रहा है, तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा है? तो ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है, और वो काम तुम्हें फ्यूचर में लेके जा सकता है। खत्म। दैट इज बट पर्सपेक्टिव। बट जनरली स्टूडेंट अभी पता नहीं, अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में या फिर बहुत सारे मे बी मेट्रो सिटीज़, जितना मैं यूट्यूब देखता हूँ और जितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कि स्टूडेंट्स कमिंग अप नाउ इन entrepreneur by being an entrepreneur और इन entrepreneurship जर्नी, इट्स मोर, बट तब के टाइम पे मुझे लगता है कम था. सो व्हाट वर योर फ्रेंड्स कॉलिंग यू बैक देन? कुछ क्रिटिसिज्म हुआ या फिर एवरीवन वाज सपोर्टिव? हाउ वाज इट? नॉट क्रिटिसिज्म, मेरे जो दोस्त थे, बेसिकली जो नागपुर के दोस्त थे, वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। ओके. या मैंने एज आई कोट अर्लियर कि ये जो शुरू किया है, जो आग लगाई है, वो उन्होंने ही लगाई है कि ओके. बट काफी अच्छे फील्ड है, काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। लेकिन जनरली क्या होता है, आई ऑब्जर्व दिस लॉट कि जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, तो लाइक कहीं ना कहीं गैप आता है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं गैप आता है, एंड दिस थिंग हर्ट्स यू अ लॉट। आपको ये तोड़ के रख देगी कि यार मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, उस वजह से मैं अपने पुराने लोग, जो आपका पार्ट है, वो आप वो पार्ट को खो रहे हो। लेट इट, मतलब जाने दे रहे हो खुद से, क्योंकि आपको ये चीज करनी है। बट उस टाइम पे हमने खुद को यही चीज समझाई कि गाइस देखो, आज जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग जा रहे हैं उनको वापस पाया जा सकता है, लेकिन उनको वापस पाके वर्थ इट तब रहेगा जब तुम उस लेवल पे पहुंचो. रहो। या. मतलब तुम दोनों बॉटम पे हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। नहीं. तुम दोनों एवरेज हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तुम तो एक्सेल करो कम से कम, ओके. बाद में जाके तुम लोगों को मना सकते हो। आज फोकस करो। तो दोस्त गंवाना एंड ये सब बहुत ज्यादा कॉमन है, मैं कहता हूँ इस सारा जर्नी में सबके साथ ये सब होता है कि लोग जाते हैं, बट इससे टूटना बिल्कुल ही अफोर्डेबल नहीं है। ये आई थिंक ये सबसे करेक्ट वर्ड है, अफोर्डेबल नहीं है ये सबसे। अफोर्डेबल नहीं है. या. हाँ। बट वो फ्रेंड्स ही क्या जो को सपोर्ट ना करे इन योर जर्नी. दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट आई थिंक। या मे बी. बट देन फिर कॉलेज, ओके, ये पूरा ओवरकम कर लिया, रेजिस्टेंस दोनों बैलेंस कर लिए. सो अभी एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो कॉलेज में अभी प्रेजेंस है या फिर कंप्लीटली आउट ऑफ इट? हम लोग जब फाइनल ईयर में थे तब प्रिंसिपल सर्स एंड ऑल सबसे काफी सपोर्ट मिला। मुरे मैम करके हमारे ये है इंक्यूबेशन के इंचार्ज हैं, उनसे हमने डिस्कस किया, बात किया। वो सारे लोग काफी ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने हमें एक जगह अलॉट किया, एंड जगह जो अलॉट हुआ उसमें फिर हमने सारा काम हमारा शिफ्ट किया। जो फ्लैट में होता था बेसिकली, वो सारा हमने यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ से फिर हमने प्रॉपर इंडस्ट्री में पैर रखना शुरू किया। अभी तक हम लोग इंडस्ट्री में थे नहीं, जब तक हम लोग फाइनल ईयर में नहीं थे। Okay, so now you have a proper space to. Yeah, we have a proper space. We have all floor with 4 rooms, 1 seminar hall, workshops and all. We have everything here. Yeah. So मतलब you started from a engineering college, overcoming all the resistance and creating college as a workspace now full time. Yeah. Amazing. Like this rarely happens because एक बार कॉलेज छोड़ दिया तो पीपल गो आउट एंड दे डोंट थिंक कि वापस फिर से कभी भी कॉलेज जाना चाहिए. बट यू मेड श्योर दैट कि आपकी वर्क स्पेस ही आपका कॉलेज हो जहाँ से शुरुआत हुई है. अमेजिंग. लाइक so in your journey, like for let's taking this thing कि being a student, what do you think or how can be a roadmap, like if anyone, like any viewer of a student and he or she wants to start something of their own, so obviously since you have done it and many others are doing right now, like they can also start something of their own. Definitely. But let's say if you tell them not exactly the roadmap, but because everyone's journey would be different, but a template or you know kind of things from your experience being a student. अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ आज और मैं फर्स्ट ईयर में ये वीडियो देख रहा हूँ, कोई भी लाइक कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर मेडिकल से हूँ या फिर इन एनी सेक्टर, कॉमर्स, XYZ, सो मुझे अगर शुरू करना है, सो क्या करना चाहिए, क्या दिक्कतें आ सकती है, एंड व्हाट वुड बी माय अप्रोच इफ यू कैन से?
ओके ओके। Since you have lived that journey being a student. डेफिनेटली। सबसे स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि अभी हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद ट्राई करेंगे, या फिर मैं ये कर लेता हूँ उसके बाद वैसा करूंगा। Mm-hmm. बट मैंने हमेशा एक चीज फॉलो की है। एक मराठी में काफी अच्छे एक कवि है, एक ड्यूओ है बेसिकली, संदीप खरे एंड यू कैन संदीप खरे एंड डॉक्टर सलील कुलकर्णी। Yes, yes. उनकी I know. काफी अच्छी एक कविता है, यहाँ उनकी काफी अच्छी एक कविता है। वो कहते हैं एक कविता में, Mm-hmm. मुहूर्त माझा तोच ज्या क्षणी हो इच्छा, वेळ पाहुनी खेळ मांडणे नामंजूर। Oh, इसका मतलब मेरा मुहूर्त वही है जब इच्छा हो जाए, टाइम देख के कोई गेम चालू करना या कोई चीज स्टार्ट करना, ये मेरी फितरत ही नहीं है। तो मैं सारे लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपके दिमाग में कोई चीज क्लिक हो रही है ना, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। okay. डोंट वेस्ट योर टाइम इन, यू कैन से, थिंकिंग एंड टेकिंग अ सजेशंस। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आज मुझे लग रहा है कि मुझे एक प्रोजेक्ट चालू करना चाहिए, जस्ट स्टार्ट इट। Okay. स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि यार ये वर्थ इट नहीं है, ये सारा चीज, इतना स्ट्रगल हम लोग जा क्यों रहे फालतू, ना पैसे मिल रहे, ना पैसे आ रहे, पैसे जा रहे, टाइम नहीं मिल रहा है, दोस्त नहीं मिल रहे, गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे, खाना टाइम से नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे दोस्तों के साथ। Mm-hmm. ये सारे हर्डल्स आपको इतना ज्यादा परेशान करके रख देंगे एक पॉइंट पे कि यू वाज जस्ट थिंकिंग लाइक क्विटिंग इट, यार ये सब छोड़ो, जब नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो ही जाएगा आगे। बट आई सजेस्ट कि यही सबसे बड़े लोग, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसी स्टेट पे क्विट करते हैं। एंड आपने अगर पेज सर्वाइव कर लिया तो आपने आधा बैटल तो जीत लिया Correct. इस फेज पे। इसके बाद आइडिएशंस एंड मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट की बात चली थी कि हमारा जब पहला काम हमने गेन किया था तो वो उत्तर प्रदेश का एक प्रोजेक्ट था यूपी में। Mm-hmm. वहां पे हमको एग्रीकल्चर ड्रोन से स्प्रेइंग करना था। Mm-hmm. मतलब मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना प्रोजेक्ट वैल्यू था ना, अच्छा हमारा वहां पे क्रैश हो गया 2 बार। Mm. जितना प्रोजेक्ट वैल्यू था ना उतना हमें लॉस हो गया। Oh, okay. फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ आवर एंटायर लाइफ, एंटायर करियर। Okay. ऐसे टाइम पे हम लोगों ने कितने कहाँ से कर्जे लेके वो सारा लॉस रिकवर किया है। बट ये तो अच्छा लर्निंग भी हुआ ना, कि बिकॉज नेक्स्ट टाइम ये फिर लॉस ना हो तो क्या किया जा सकता है। दैट इज, मैं वही आपको समझाना चाहता, व्यूवर्स को यही समझाना चाहता हूँ कि आपको कई सारे ऐसे रीजंस मिलेंगे कि आपको क्विट करना है, लेकिन आपको वो एक रीजन पे स्टिक रहना है कि नहीं, मैं क्विट नहीं करो। नहीं कर सकता, मेरे पास क्विट करने का ऑप्शन ही नहीं है। Correct. तब जाके आप ऐसे माइंडसेट के साथ आगे जाओगे कि आने दो, देख लेंगे, आने दो, देख लेंगे। Correct. सो आई थिंक दिस शुड बी द रोड मैप कि नो प्लानिंग, मतलब नो प्लानिंग इन द सेंस ऑफ पर्टिकुलर प्लानिंग कि मुझे आज मार्केट में जाके, ये दुकान में जाके ये स्क्रू खरीद के लाना है, नॉट नीडेड। Yes. Correct. इतना डिटेल प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना डिटेल प्लान तब करना जब तुम्हारे पास ऑलरेडी सेटअप इंस्टॉल्ड सारा, तब आई थिंक इतना सारा प्लानिंग जरूरी होता है। जब आप स्टूडेंट लेवल पे हो तो यू आर मेंट टू बी एक्सप्लोर। आप इतना प्लान करोगे तो एक्सप्लोर कब करोगे? जस्ट एक्सप्लोर, आप में किस में मजा आ रहा है, आपको किस में मजा आ रहा है, देन आप कौन सी चीज ज्यादा एफिशिएंटली कर पा रहे हो, जस्ट फाइंड इट आउट एंड देन अप्रोच फॉर द स्पेसिफिक प्लानिंग कि अच्छा मैंने सारा देख लिया, मैंने कंपोजिट देख लिया, मैंने एग्रीकल्चर ड्रोन देख लिया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स देख लिया, सबसे ज्यादा मजा मुझे ड्रोन में आया। आई ड्रोन्स, अभी इतने सारे ड्रोन्स है, ड्रोन से फोटो खींच सकते हैं, ड्रोन से एग्रीकल्चर स्प्रेइंग कर सकते हैं, पेलोड कर सकते हैं। मुझे इंटरेस्ट आ रहा है सर्वे में, तो मैं सर्वे करूंगा। तो ये पहले किसी को पता नहीं होता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट धीरे करूंगा, धीरे when you go into that field and you get to know more into that That's- field, you get to know कि और क्या क्या हो सकता है, इसके applications क्या हो सकते हैं, हाँ। कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे डिमांड है। So what And do don't you feel yourself कि sorry go ahead. डोंट वेंट योरसेल्फ आउट। एक ही चीज पे आप वेंट आउट नहीं होना है। Done. क्या लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में रिसोर्सेज बहुत है, मतलब एज ए ह्यूमन रिसोर्स लाइक अराउंड यू, जूनियर्स, सीनियर्स, और काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द कैंपस और इन द कॉलेज? व्हाट डू यू थिंक? टू बी ऑनेस्ट, दिस इज अ 3-tier कॉलेज, सो फैसिलिटीज एंड ऑल ये सब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट्स आई कैन से कि टायर 3 और टायर 3-2 कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उनके पास फैसिलिटीज तो बिल्कुल नहीं होती है या बहुत ना के बराबर होती है। बट हम अभी भी इंडिया में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बाहर के स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं, बट आपको अप्रोच करना है, आपको करेक्ट अप्रोच करना है।
तो वहां से आपको फैसिलिटी सारा जनरेट हो जाएगा. बट ये तो तभी पता चलेगा वंस यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट, स्टार्ट वर्किंग स्टार्ट बेसिकली. वर्किंग बेसिकली. हाँ. तो ये ऐसे कोई हाथ में लाके नहीं देने वाला है कि नहीं यहाँ देगा बिल्कुल. देर इज नो रेसिपी कि इसके Yes. पास जाना है उसके पास जाना है, या बट यू इट्स अ विल करेक्ट गेट टू फ्रेम, आई नो थिंक. हाँ. eventually the more you work towards it. हम्म. Yes, I can totally हम्म. understand. So मतलब tier 2 tier 3 cities say, being from a background from a taluka in Jalgaon district also, you can हम्म. start a business using the resources but having at the same time having the will to do something of your own and sticking on that dream, not giving up or not quitting It's up. very important. Yeah. And then you started a startup. So anyone, viewers, anyone of you who are a student right now can also start something of your own, like what Smitesh has done, or with his team has done it. And करो यार, resources use करो, explore करो in your education and just start it out. So Smitesh, मज़ा आ रहा है, like now at what stage you feel that your company is, and मज़ा आ रहा है, like what's या the अभी plan? तो काफी, मतलब काम ऐसा करो जिससे मजा आ रहा है, तो फिर पैसा एंड ऑल ये सारी चीजें बस निकाल रहे हो आते जाते पैसा, हैं. निकाल रहे हो कंपनी से खुद के लिए, और नहीं अभी अभी तो हम लोग डेवलप ब्रेक ही इवन कर रहे हैं. हमें पैसा नहीं चाहिए क्योंकि हमें 101% पता है हम जो काम कर रहे हैं, और 4-5 साल किए तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है. आप जब आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको वैल्यू ऐड हो रही है, ओके. तो आप उस टाइम पे पैसा नहीं देखते. बट आप जितनी बस ज़रूरत एक, है उतना मैनेज हो पा रहा है या या फिर? हम लोगों को घर से पिछले 1 साल से घर से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है. अमेजिंग, अमेजिंग. हम लोग यहाँ पे रेंट वगैरह सब सब सारी जो चीजें, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, एंड आपको एरोस्पेस जो डोमेन है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव डोमेन. आपको हर एक चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और हमें ये सारे एक्सपेंसेस के लिए किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, और हम लोग हर 2 महीने में नया एसेट बना रहे हैं. सो इट्स अ गुड प्रोग्रेस, आई थिंक. Yeah, very well. Like if you're not taking money from your parents and still doing and going ahead, it's a very very good progress. So what do you see like the future of Aerovania? ओके. आई थिंक जो भी हम लोग R&D कर रहे हैं इन हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल एंड ड्रोन डेवलपमेंट्स, बेसिकली जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स रनिंग है वो काफ़ी पोटेंट है. Okay. और हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी हर जगह पे पिचिंग भी करके रखी है. कुछ कुछ इन्वेस्टर्स ने हमको सामने से भी अप्रोच किया है फॉर कंपोजिट मटेरियल्स एंड ऑल, बट वी आर not ready to pitch it in the market basically, Okay. because R&D is not matured enough Okay. about the composite material and whatever the thing we are working on. So I think अगर हम लोग आगे के 5 साल में खुद को विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो हम लोग एरोस्पेस डोमेन में काफी प्रोमिनेंट पोजीशन पे खुद को देखते हैं in terms of manufacturing and serviceability and service of the drone space. Okay. Yeah. So And this is gonna happen definitely. definitely, like we are also Yeah. excited and thrilled, like how students turned entrepreneurs and started their something of their own with minimal resources, and found out your own ways and started this startup. So we are also looking forward, and like एक message अगर देना चाहोगे to all the students, what would like the students community, because since you can relate it more, that's why I'm focusing or being pressurizing on that part. मैसेज एज सच मैंने अभी तक जो भी बोला, आई थिंक वही लोग सुनना चाहते थे, वही स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए बेसिकली. Okay. हमें ये सब बताने वाले कोई थे नहीं. आप भी शायद हमें काफी लेट हमारी मुलाकात हुई है. मैं सोचा अखिलेश आपसे अगर पहले मिल जाते तो अच्छा मोटिवेशन मिल जाता. Like what you are doing, we are not doing that much, but it's very inspiring to see how, like let me tell you all that I have met them a lot of times and seen their journey from close. So lot of inspiration actually, to be really honest. लोग एज अ मैसेज मैं स्टूडेंट्स को यही देना चाहूंगा कि गाइज, जो भी ट्रेडिशनल पाथ आप लोग आसपास देख रहे हो ना, वर्थ इट नहीं है. वर्थ इट नहीं है आपके टाइम का, वर्थ इट नहीं है आपकी लाइफ का. ठीक है. आप जो बड़े सपने, अच्छा जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कुछ बड़े सपने में लेके चलते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फेरारी चाहिए, मेरे पास मेंशन चाहिए. ऑल ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. Okay. बस हम लोग के मन में जो डर है
डर ऑफ फेल्यूर। अरे आपके पास कुछ है ही नहीं तो किस चीज का डर? करेक्ट। मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो डर को सबसे पहले भगाइए। आपके पास ओके। हारने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है, क्या ही चला जाएगा। जस्ट टेक रिस्क, जस्ट स्टार्ट, और फिर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंचते हो। करेक्ट। So very great message actually. So not having a fear, just do and explore in your student life. Well, Smitesh, we have actually come to an end, but really exciting journey है, I must say कि खुद का कुछ स्टार्ट करना, एक एंड उसे नॉट ओनली स्टार्ट करना बट मार्केट में उतार के एक सस्टेन करना एट दिस एज एंड उसे कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहना, या फिर कर अभी तुम्हारी जर्नी भी शुरू है. सो ऑल द बेस्ट मैन. व्हाट कैन आई से मोर, लाइक यू आर डूइंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स to learn from you, from me personally, and all the viewers who being our students and also not non-students, they will also get inspired. If you can do it, we can also do it. So Each and every person can do it. yes. So thanks a lot for joining today's session, first session, Thank you, and Akhilesh. raising the bar high for our next sessions in the past. So Thank you, thank Akhilesh. you. It's I think it's a great session. I just like to talk about, and I just like to talk about like this journey, कि Okay. लोगों को इसके बारे में जितना पता लगेगा उतना उनके मन से डर निकलेगा Okay. कि यार स्मितेश जैसा लड़का अगर ये सब कर रहा है तो हम तो काफी आगे हैं। एंड आपके आगे के जर्नी के लिए भी ऑल द बेस्ट। Thank एंड you. मैं पर्सनली मतलब व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि अखिलेश को मैं पर्सनली जानता हूँ, काफी अच्छे से जानता हूँ, काफी कनेक्ट है हम लोग एक दूसरे से, और ही इज जस्ट डूइंग ग्रेट। ठीक है, और आप कभी इनको रेस्टलेस नहीं देख पाओगे। आप इनको जब अगर पर्सनल लाइफ में जानते हो तो आप इनको कभी रेस्ट पोजीशन में देख ही नहीं पाओगे, हमेशा रेस्टलेस, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग में। सो ये कुछ क्वालिटीज होती है हाईली सक्सेसफुल लोगों की जो मैं अखिलेश में देख पाता हूँ 101%। एंड ऑल द बेस्ट Thank you. फॉर योर Thank फ्यूचर you. आल्सो। Kind of Thank you you. enough. And all the people who are watching or will be watching this video, if you feel that your journey or you can be like Smitesh, what he has done, and you can relate it genuinely, do support us, and we will try to bring more and more founders on the show, who will tell their heart out stories of their entrepreneurship journey and what they are doing and how they are doing, so that we can all learn. So I hope you all do good, and thank you so much. Let's end it here. Thanks. Thank See you you. next time. Thank Bye you, bye. Akhilesh. Yeah.